1, 2, 3, start. Hi guys, Hello, I'm Megha I'm Anurag. and this is Poems with Friends, जहाँ हम एक पोएम पढ़ते हैं और कुछ फील करने की कोशिश करते हैं. तो Yes. आज की पोएम है Among Other Things by Arthur Russell. तो ये पोएम, बिफोर वी गेट इनटू इट, आर्थर रसल इज नॉट अ वेल नोन पोएट. ये पोएम मुझे मिली थी रैटल की ईमेल से. रैटल इज़ अ वेरी वेल नोन पोएट्री मैगजीन एक्चुअली. तो वो लोग हर साल अपना एक कॉन्टेस्ट करते हैं जिसमें वो $15,000 का एक प्राइज़ देते हैं, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी फॉर वन पोएम. और वो, बट उनकी बहुत बेस्ट बात यह है कि वो ये नहीं करते कि मतलब तुम्हारी पोएम टेक्निकली बहुत बढ़िया है या तुमने ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी पोएम लिख दी है. वो किसी को भी प्राइज़ देते रहते हैं, मतलब कोई फर्स्ट टाइम लिख रहा है उसको भी दे देते हैं वो प्राइज़. तो ये वाली पोएम जो थी, जो इसको लास्ट टाइम प्राइज़ मिला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो हम पहले ये पोएम पढ़ेंगे. इसमें एक छोटा सा नोट भी है जो ऑथर ने लिखा है, जो कि एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ा है. आई डोंट नो व्हाट दिस ऑथर डज इन रियल लाइफ, पर हम वो बाद में पढ़ लेंगे. पहले हम पोएम पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो अनुराग पढ़ेगा क्या पोएम? Let me read. Arthur Russell, among other things. Before I start, I want to say कितनी सुंदर formatting है. है ना, सुंदर है ना ये पेज, इसलिए मैं ये हाँ, ओरिजिनल पेज ही शेयर करना चाह रही थी. ऐसा लग रहा है कि बुक पढ़ रहे हैं. राइट. Anyway, हाँ. Arthur Russell, among other things. I bought her two pairs of wide-legged jeans at Target last week. For the longest time, like a year, I'd ask random women on elevators where they got their wide-legged jeans and report back to her. It's a great look, I'd say. You'd look great in them. And she'd say, I have something like that. And I'd say, no, you don't. And it would go on like that with no wide-legged jeans in her closet. So we are in Target last week, picking out Legos for her grandson. And there they are, wide-legged jeans, dozens of them, racks and racks in black and creamy white olive drab. She couldn't escape. I stood outside the changing room while she tried them. I hadn't done that since my daughter and I, on Saturdays at the mall, shopped at Meadwell. And while I waited outside the heavy curtained dressing booth, I'd watched the young store clerks refolding clothes that had been tried and rejected. I loved to watch them fold sweaters, jeans, anything really. They were so bold, so deft, with plain unconscious competence in their soft fingers smoothing the fabric ahead of the fold. And there at Target, as I waited outside the dressing room, I watched another guy, sort of my age, leaning with his elbows on his shopping cart handle, clicking his phone till his wife came out, and a young woman stuck her head out one of the doors and called to her mom to come see. But her mom didn't hear, so I turned to the mom and I said, Mom, she needs you. I like stuff like that, where I fit into life. Then my gal emerged in white socks, holding up the tail of her blue chambray shirt, exposing the waist of her creamy white pants. And yesterday I picked her up to go to my sister's house for dinner. And she's walking down her driveway towards my truck, driving those wide legged jeans and a black tee, and her white hair all scrunched into waves like she likes it. She knows she looks good. She wants me to see. So she holds her arm out like a wine bottle opener, then lowers them slowly, which draws my heart right out of my chest. But the weird part, and this is the part I'm reluctant to tell, is how in my life, uh, which has been going on for a while, when one of these moments where something I wanted but thought wouldn't happen occurs, like these wide legged jeans or meeting my gal in the first place, when happiness is like a brand new shirt, my mind calls out the name of my first friend Andy, who withdrew very early from life. How this happiness makes you think about that other happiness you had, and it's not like I see his face. It's just his name anymore. Andy, that comes to mind, like kissing the spine of a prayer book and reaching out to touch the passing Torah. Wow. बढ़िया है ना What का? twists and turns. क्या? What twists and turns. आई थिंक मुझे वही, मतलब मुझे काफ़ी बढ़िया लगी. मुझे जनरली ऐसी स्ट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशनल पोएम्स मुझे जनरली उतनी पसंद आती नहीं है, बिकॉज मैं बोर हो जाती हूँ बीच में. आई एम लाइक कि हाँ ठीक है, वॉट एवर. बट आई थिंक इसमें मैं बोर नहीं हुई बीच में, बिकॉज
दिस इज सच, मतलब इसमें सब कुछ है इस पोयम में। इस पोयम में एक फ्रेश इमेजरी है, इस पोयम में वो फीलिंग है, इस पोयम में वो सटल मोमेंट्स हैं, इस पोयम में एक पूरी स्टोरी है, और इस पोयम में ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग देयर इज अ फिलॉसफी ऑल्सो। तो मतलब इवन दो इट इज रिटन लाइक अ कॉन्वर्जेशनल स्टाइल, बट वो कॉन्वर्जेशन स्टाइल में मतलब कितना सक्सेंटली सब कुछ है, सक्सेंटली सब कुछ उसमें डाल दिया गया है। तो मुझे काफी बढ़िया लगी, मतलब मुझे लगा कि हाँ, मेरे पास एक और पोएम थी विच वाज बाय अ फेमस ऑथर, बट आई वाज लाइक यू डोंट हैव टू बी फेमस और यू डोंट हैव टू फॉलो सर्टेन टेक्निक्स या ट्रिक्स, इवन इफ यू राइट समथिंग वेरी सिंपल, बट तुम एक अच्छे स्टोरी टेलर हो और तुम उस स्टोरी को एक एंगेजिंग तरीके से सुना रहे हो, तो दैट मेक्स अ गुड पोएम। And I think काफी interesting था, these wide-legged jeans was like an anchor throughout all the thoughts कि वो एक जीन्स कितनी उसके मेमोरीज ट्रिगर कर रही थी, and it was so I think मेरे को ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि this was like a portrait of a person. I think the feeling that I got from this whole thing is now I know a person I did not know. हाँ राइट, मतलब वही बहुत सही कि उसने इतने सारे मोमेंट्स उसमें स्टिच इन कर दिए कि यू वर नेवर बोर्ड फॉर अ मोमेंट एंड यू नो सो मेनी डायमेंशंस ऑफ हिज लाइफ, और वो उसने इतने डेफ्टली स्टिच इन करे हैं, मतलब कि इतनी ज्यादा स्किल से स्टिच इन करे हैं कि यू डोंट इवन रियलाइज। जैसे कि इफ वी सी दिस लाइन कि सो वी आर इन टारगेट लास्ट वीक पिकिंग आउट लीगोस फॉर हर ग्रैंडसन, this is the first time that you see the mention of an age कि grandson। Yes, agree completely. और कितने चुपके से डाल दिया कि उसने सिंपली स्टार्ट किया कि हाँ मेरे को तो वाइड लेग जीन्स दिखती थी, मैं उसको बोलता था, फिर उसने ग्रैंडसन ऐसे ही डाल दिया, मतलब नॉन चैलेंटली ना कॉन्वर्जेशनल वे। तो ही इज नॉट ट्राइंग टू कॉल अटेंशन, वही मतलब इस पोएम की सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे होता है ना कि तुम कोई भी चीज बता रहे होते हो या तुम कोई पोयम जब लिख रहे होते हो, यू ट्राई टू कॉल अटेंशन टू मच टू द थिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट, कि अगर मैं ग्रीफ के बारे में लिख रही हूँ या लेट्स से मैं किसी की डेथ के बारे में लिख रही हूँ या मैं सेक्सुअल अब्यूज के बारे में लिख रही हूँ, कोई बहुत हैवी चीज लिख रही हूँ, तो आई विल कॉल अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। इसने अब मतलब इसने उस चीज पे कॉल अटेंशन ही नहीं करी कि हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स हैं बट वी आर डेटिंग, बट उसने अपने सेंस में उसको बताया, जैसे उसने एंड में बोला कि और मीटिंग माई गैल इन द फर्स्ट प्लेस, कि उसके लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट है, बट उसके लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट है जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट कि आई एम अ 70-year-old grandpa and I have a girlfriend. He is not trying to paint himself into a caricature. He is very true in his feelings. No, I agree कि I think same कि it does not feel like an old person talking. It just feels like any other person sharing their memories who just happens to be an old person. कि they are not philosophical thoughts. Like for example, an old person is not talking about wide-legged jeans anywhere, but he's obsessed, right? And I think धीरे धीरे जैसे he keeps on telling these stories, धीरे धीरे ऊपर की चीजें क्लिक करने लग जाती हैं कि till he mentions the grandson, I'm like क्यों मना कर रही है, बट देन इट फील्स लाइक अ रिलक्टेंस कि लेटेस्ट फैशन है, आई एम एन ओल्ड वुमन, आई डोंट वांट टू डू इट, एंड नाउ एक आई एम क्रिएटिंग अ स्टोरी व्हिच आई वाज नॉट इन द बिगिनिंग। हाँ दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, कि वो धीरे धीरे जो लोग तुम्हारे सामने बन रहे हैं, मटेरियलाइज हो रहे हैं, यू सी मोर टू देम कि हाँ मे बी वो इसलिए मना कर रही हो बिकॉज उनका वो फैशन वो कैसी लगेंगी बूढ़ी होके, एंड देन स्मॉल स्मॉल हिंट्स वो डालता है, जैसे कि उसने यहाँ पे भी लिखा कि wearing those wide-legged jeans and a black tee and her white hair all scrunched into waves like she likes it. मतलब this is such a वो जैसे बोलते हैं ना कि राइटर की सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि you do exposition without the reader realizing that it's exposition. तो उसने white hair डाल दिया, as an image डाल दिया उसने as an exposition नहीं डाला, और उसने his feeling is very true कि all scrunched into waves like she likes it. तो he is the person who is promoting her, who is encouraging his girlfriend जो कि grandma है,
to be the way that she likes, like to not be too self-conscious as a grandma and just be the way that she likes it. And मतलब undescribable है ये feeling कि in the sense कि he is basically this amazing person who does not care that he's a grandpa, who really loves his girlfriend who's a grandma, and who encourages her to be like she wants to be. But that is what not, वो उस पोएम में ये नहीं लिख रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है मैं उसको एनकरेज करता हूँ कि तुम्हें क्या पड़ी है लोगों की, वो चीज़ वो लिख नहीं रहा है। मतलब उसको उसने एक रिपोर्ट की तरह नहीं लिखा है कि देखो मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा बोलता हूँ, एनकरेज करता हूँ कि यू शुड बी वॉट एवर यू वॉन्ट। वो एक एक्शंस के थ्रू एक्चुअली में बता कर रहा है वो चीज़ें। True, and I think the best part is he's doing a lot of these actions, but he's telling why he wants to do it. Okay, he's not saying I am a good person so I'm doing it या मेरे को अच्छा करना चाहिए. He's like, okay, he's trying to tell you selfish parts of these charitable acts. Okay, he's like I like stuff like that where I fit into life. Okay, उसका desire है इसीलिए वो ये सब चीजें कर रहा है. For example, he wants to see her in a wide-legged jeans. तो वो okay, he is also doing it for himself. Okay, and that's so human. Right. हाँ, that is the best part of being human ना, कि तुम इतने self involved हो कि you are not making any proclamations about anything. You are like कि मैं self involved इतना हूँ कि मुझे इस चीज़ में इतना मजा ही इतना आ रहा है। मतलब चलो हम एक और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर हम जनरल डिस्कशन पर जाएंगे। And let's try to see ki what makes this poem work, even though it is like very free form, does not follow any rhyme, meter, anything. But what makes it work? So I bought her 2 pairs of wide-legged jeans at Target last week. For the longest time, like a year, I had asked random women on elevators where they got their wide-legged jeans and report back to her. ठीक है, what works about this paragraph? I think no, you tell. मतलब I think सबसे one चीज that hits you is कि starting से ही उसने टोन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रखी है। मतलब मुझे लगता है कि even while I am writing, मैं पहले जब लिखती थी, मैं नॉवल लिखने की कोशिश करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हर एक चीज़ डिस्क्राइब कर देनी है, कि मुझे कोई इंसान मिला तो मुझे उसको डिस्क्राइब कर देना है, या मैं किसी घर में घुसी तो मुझे उस घर को डिस्क्राइब कर देना है। ओनली मच लेटर आई रियलाइज्ड कि इट इज़ नॉट अबाउट कि मुझे कोई बहुत ही करेक्टनेस से डिस्क्राइब करना है किसी भी चीज़ को। इट इज़ अबाउट मेंटेनिंग माई वे ऑफ टेलिंग थिंग्स। कि जैसे मेरी एक दोस्त है, वो मुझे बहुत ज़्यादा वॉइस मैसेज भेजती है और वो कुछ स्टोरी बताती है मुझे वॉइस मैसेज में, और वो बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर है, क्योंकि वो वॉइस मैसेज में जिस तरीके से बताती है चीज़ें, वो ही उसका स्टाइल है बताने का। दैट इज़ बेसिकली हर वॉइस, हर स्टाइल। तो मुझे बाद में ये समझ आया कि व्हेन यू राइट समथिंग, इट इज़ नॉट अबाउट द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस और अ पर्सन, इट इज़ अबाउट यू टेलिंग समवन अ स्टोरी एंड योर वॉइस इन दैट स्टोरी। जैसे कि उसने बोला कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लाइक अ ईयर आई हैड आस्क्ड रैंडम वुमेन ऑन एलिवेटर्स, और फिर जब उसने बोला एंड रिपोर्ट बैक टू हर इज एक्चुअली सच अ मतलब weird way of saying कि she didn't say कि I told her, I asked random women on elevators and I told her. Report back to her is how he sees this, और this creates such a funny image कि कोई इंसान I am reporting back to you, मुझे लड़की मिली। I think I also like the same part that you are saying कि he is telling what sticks out to him, कि wide-legged jeans are important to him, Target is important to him, and कि कितना सही है कि रैंडम वुमन एलिवेटर तो सच अ फनी थिंग कि तुम ऐसे स्ट्रेंजर औरतों से बातें कर रहे हो, एंड ही इज लाइक मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक एजेंडा है, आई वांट टू फिगर आउट कि वाइड लेग कि ही इज ऑब्सेस्ड विद वाइड लेगेड जीन्स के कहां से मिली उन्हें मुझे बताओ, और कि एंड ही इज रिपोर्टिंग बैक, एंड इट्स कि हाँ कि ही इज सेटिंग द एसेंस ऑफ द थिंग्स, कि ही इज टेलिंग द डिटेल्स दैट मैटर। He is telling the details that matter, very important. He's setting a tone which is his own, like it is him telling a story, and he is creating a very funny image. मतलब asking random women on elevators, हो सकता है उसने consciously भी ना करी हो वो image create, that is an image that comes with him as a person, but it's a very funny image.
एंड आई थिंक आई ऑल्सो लाइक, मतलब जैसे ये इंसान कोई पोएट नहीं है बट ही हैज सच अ टैलेंट फॉर स्टोरी टेलिंग। उसने फर्स्ट लाइन में एस्टेब्लिश कर दिया कि ये स्टोरी इस बारे में है। आई बॉट हर 2 pairs of white legged jeans, दिस इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। मतलब दिस दे टेल यू इन स्क्रीन राइटिंग क्लास, स्टोरी टेलिंग क्लास में ये सब चीजें बताएंगे, बट एक्चुअली ये कितना नेचुरल है। इट इज एक्चुअली नेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू डू दिस एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। और फिर उसने एक फनी से स्टार्ट करी कि ये है स्टोरी इस बारे में है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या। वैसे ठीक है, नेक्स्ट। It's a great look, I'd say. You'd look great in them. And she'd say, I have something like that. And I'd say, no, you don't. And it would go on like that with no wide-legged jeans in her closet. This also, I think this person has a penchant for humor. कि yes. मतलब कि कितना joyful तरीका है जिंदगी को देखने का कि there is with no wide-legged jeans on the closet, कि he is saying कि हम बहस कर रहे हैं बट मेरे हिसाब से देयर इज नो वाइड लेगेड जींस इन द क्लोसेट के एंड ही इज फ्रस्ट्रेटेड कि इस फ्रस्ट्रेशन भी है इस पूरे उसमें। फ्रस्ट्रेशन है और बहुत कॉमेडिक फ्रस्ट्रेशन एज यू सेड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ही इज नॉट सेइंग एनी ऑफ द इमोशंस, कि ही इज एक्चुअली टेलिंग फैक्ट्स व्हिच आर इंटरेस्टिंग। कि रैंडम वुमेन्स एलिवेटर पे बात कर रहा हूं, नाउ आई एम क्यूरियस, आई वांट टू पॉज हियर एंड नो कि क्यों, कैसे, क्या वो औरतें क्या बोल रही थी, एंड ही इज लाइक आई डोंट केयर। और आगे बढ़ लाइक हमारी बातें चल रही है विद नो वाइड लेगेड जींस ऑन द क्लोसेट, और कि बट क्या बातें चल रही हैं, कि आर्गुमेंट क्या है, मतलब कितनी क्यूरियोसिटी है इसको पढ़ते पढ़ते। I actually like what you said about the comedy thing, because if you look at it, his each paragraph kind of ends in a punchline. मतलब and report back to her is such a punchline. ये वाला पैराग्राफ भी मुझे पढ़ते पढ़ते थोड़ा वो लगा था, ऑफ लगा था, बट देन व्हेन ही सेड विद नो वाइड लेगेड जींस इन द क्लोसेट, इट्स लाइक अ पंच लाइन। दैट्स ट्रू, अगले वाले में भी आई थिंक है। आई कैन सी। So we are in Target last week picking out Legos for her grandson. Why? Amazing exposition. He doesn't waste a paragraph for exposition. He's like, exposition तो मैं तुम्हें कहानी सुनाते सुनाते ही दे दूंगा। And there they are, wide-legged jeans, dozens of them, racks and racks, in black and creamy white and olive drab. She couldn't escape. Nasha story. So I stood outside the changing room while she tried them. I hadn't done that since my daughter and I on Saturdays at the mall shopped at Madewell, and while I waited outside the heavy curtained dressing booth. I think this is also very interesting because this feels like a slowing down of pace. मतलब उसने बहुत जल्दी जल्दी ये सुनाया, ये हुआ, वी आर इन टारगेट, और एकदम से स्लो डाउन ऑफ पेस फील हो रहा है ना, कि आई हैडंट डन दैट, थोड़ी सी इमोशनल बात हो गई, सिंस माय डॉटर एंड आई ऑन सैटरडेज एट द मॉल। और फिर उसके बाद ही इज स्पेंडिंग टाइम इन एचिंग आउट द डिटेल्स ऑफ दिस ड्रेसिंग बूथ, क्योंकि अब वी आर गोइंग टू बी एट द ड्रेसिंग बूथ फॉर सम टाइम नाउ। हमने तीन अब हम खरीद रहे हैं। अब हम खरीद रहे हैं। एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट सही पॉइंट है कि हम ईयर्स में फ्लिट कर रहे थे एंड नाउ वी आर फ्लिटिंग इन मिनट्स। और वो बहुत अच्छा प्लेस टू स्लो डाउन भी है, क्योंकि आप जब एक्चुअली चीजें ट्राई कर रहे होते हो और ड्रेसिंग बूथ के बाहर बैठना एक्चुअली फील्स लाइक इटर्निटी समटाइम्स। वो उसने सही टाइम पे स्लो डाउन भी किया है, मतलब मिड ऑफ द, जैसे स्टोरी सुनाते सुनाते बोलते हैं ना मिडल सेक्शन स्लो होता है, उसने बहुत ब्यूटीफुली स्लो डाउन किया है कि आओ अब ड्रेसिंग बूथ के अंदर बैठते हैं, हैवी कर्टन ड्रेसिंग बूथ है, ठीक है ना। और अब वो पूरा स्लो डाउन कर रहा है, अब वो उस स्लो डाउन में उसने एक नशा ढूंढ लिया है, मतलब। पढ़ो। I watched the young store clerks refolding clothes that had been tried and rejected. I loved to watch them fold sweaters, jeans, anything really. They were so bold, so deft, with plain unconscious competence. Should I continue? It's middle of the... Let's this first. I think slow down हुआ वो, और slow down होते होते फिर उसने
मतलब उसने पास्ट और प्रेजेंट को थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। उसने ये बोला है कि मैं सैटरडे को अपनी बेटी के साथ बैठा होता था, जब मैं बेटी के साथ जाता था, और तब ऐसा होता था। बट आई थिंक वो प्रेजेंट में भी जब ड्रेसिंग बूथ के बाहर बैठा है, ही इज रेमिनिसाइजिंग ऑल दैट। तो उसने काइंड ऑफ उस पास्ट और प्रेजेंट को मर्ज सा कर दिया है, विच आई रियली लाइक, अगेन विदाउट कॉलिंग अटेंशन टू इट। मतलब ही इज लाइक कि मैं ड्रेसिंग रूम के बाहर हूँ, मैं जब अपनी बेटी के लिए बैठा होता था तो ऐसा होता था, और मैं स्टोर क्लर्क्स को देखता था। और व्हाट आई एक्चुअली लव अबाउट दिस पोएम इज कि मतलब मैं थोड़ा सा आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ गीक फॉर फिलोसफी। मुझे लगता है कि किसी पोएम ने कोई डीप बात कह दी तो मुझे लगता है कि बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि इस पोएम में सब कुछ है, ह्यूमर है, स्टोरी टेलिंग है, और इसमें फिलोसफी भी है ऊपर से। कि इसने बोला ना कि आई लव टू वॉच देम फोल्ड स्वेटर्स जीन्स एनीथिंग रियली, they were so bored, so deft, with plain unconscious competence. मतलब this is such a way of observing the world. मतलब this is a person who is mad about wide-legged jeans, who is very good with humor, but also when he slows down, he observes the world in a way which makes you look at things that you didn't look at before. जो कि मेरी पर्सनल पोएट्री से बहुत वो रहती है कि किसी पोएट्री ने मुझे ऐसी चीज दिखा दी जो मैंने नहीं देखी है दुनिया में, या अलग तरीके से दिखा दी, तो मुझे बहुत मजा आता है, और उसने वो भी कर दिया। Same, agree कि I don't think I have stopped, मतलब कि when I am waiting outside I am not looking at people, but he is looking at people, and this is the contrast is amazing कि they are so bold, so deft with plain unconscious competence. Like every word he is alternating with कि they don't want to do it but they are really good at it. कि the cliche usually is that they are so bored, they don't care, etc. But he's like, but they are competent. वो कर भी रहे हैं। And both of these things are extremely important. हाँ, मतलब वो हर एक उसने जिस तरीके, एक अलग ही तरीके से दुनिया को देखा, और आई थिंक उसका जो रोमांटिसिज्म है, उसके अंदर जो रोमांटिसिज्म है, वो दुनिया के देखने में भी लीक हो गया थोड़ा सा। इज लाइक वो बोर्ड हैं पर वो बहुत बढ़िया से कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब। और इन देयर And he's proving in their soft fingers smoothing the fabric ahead of the fold. This is an amazing image. This is the kind of thing I like poetry for, कि एक बहुत ही इतनी स्पेसिफिक चीज जो तुमने नोटिस कर ली और तुमने मुझे दिखा दी वो चीज। मतलब मैंने नहीं देखी थी दुनिया में कभी होते हुए वो, बट तुमने मुझे दिखा दी वैसा, कि ऐसा ही तो होता है ना, वो लोग कर रहे होते हैं और वैसे बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर रहे होते हैं, वो बहुत ही एग्जॉस्टेड से डीमन लाइक लग रहे होते हैं, पर वो कर रहे होते हैं ऐसे करके, कि हाँ ऐसा तो कर रहे होते हैं। कि हाँ एग्जैक्टली कि ऐसा तो कर रहे होते हैं, बट यू नेवर नोटिस और वर्बलाइज इट till you hear it. Till you hear it. Now we will notice. Actually, this also reminded me of कि again मुझे मॉडर्न पोएम्स इसलिए, मतलब इस टाइप की मॉडर्न पोएम्स मुझे पसंद आती हैं बिकॉज जैसे जनरली पोएट्री जो हम पढ़ते हैं, जो हम क्लासिक्स पढ़ते हैं, दे आर वेरी मच अबाउट नेचर। मतलब मेटाफर उसमें सारे नेचर वाले ही होते हैं कि मून है, रिवर है, खरगोश चला गया इधर से उधर, ये वो। एंड समटाइम्स यू आर एट अ लॉस क्योंकि हम उतना नेचर में रहे ही नहीं यार, कि हम मतलब तो हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि खरगोश जाता कैसे एक्चुअली। तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगता है कि दिस इज लाइक अ मॉडर्न वर्ल्ड पोएम, पर मॉडर्न वर्ल्ड में भी तुमने वो ऑब्जर्वेंट क्वालिटी ला दी है एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड नाउ यू आर ऑब्जर्विंग दैट मॉडर्न वर्ल्ड लाइक अ पोएट। तो देखिए हाँ, ये मैंने देखा है, खरगोश तो मैंने देखा नहीं है, पर ये देखा है। ठीक है। And there at Target, as I waited outside the dressing room, I watched another guy, sort of my age, leaning with his elbows on his shopping cart handle, clicking his phone till his wife came out, and a young woman stuck her head out one of the doors and called to her mom to come see. But her mom didn't hear, so I turned to the mom and said, "Mom, she needs you." I want to say this कि it's very observant कि for example he is not judging the guy for being कि he is not attached, the thing is he is not attaching any adjective कि
I think the only adjective that he has explicitly assigned is the bored, deaf, plain, and conscious competence. But other than that, he has actually not said anything. Okay, I can see this guy is extremely impatient. I can probably picture him. Okay, he's there simply because the wife wanted to, Mm-hmm. and he's like, okay, that's the only thing I observed, and he moved on without judgment. And then, okay, the second part that I really liked is how much he references mom as a word. Okay, he's really connecting with the mom part of that woman. Okay, okay, he's not seeing her as a woman. He's specifically seeing her as a mom. Hmm. Right, Okay, right. that हाँ, is so apparent. Okay, okay, उसमें that okay, mom because the daughter is this is mom. यस यस हाँ, उस इस वाले पैराग्राफ में तो वार्मथ काफी ज्यादा दिखती है ना उसके अंदर से. एंड आई लाइक योर ऑब्जर्वेशन अबाउट कि वो जज नहीं कर रहा किसी को भी, मतलब तो यू कैन एक्चुअली फील हिज एनर्जी, मतलब हिज एनर्जी सिटिंग आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम इज ऑफ एन ऑब्जर्व, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक समवन सिटिंग इन अ मेडो एंड ऑब्जर्विंग. इसीलिए मुझे वो नेचर वाली चीज याद भी आई, क्योंकि वो इतनी अनजजमेंटली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं ना. इट इज ऑलमोस्ट लाइक समवन सिटिंग एट अ लेक एंड ऑब्जर्विंग थिंग्स. तो उसने But I ऐसे. think he is judging things only positively. He only judged for competence. He did not judge for impatience. He did not judge for mom not hearing. Okay, he has given a lot of benefit or doubt to people. हाँ, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी है और वो उस Hmm. पॉजिटिविटी से सबको करता है. राइट, ठीक है. I like stuff like that, where I fit into life. Then my gal emerged in white socks, holding up the tail of her blue chambray shirt, exposing the waist of those creamy white pants. And yesterday, this though, of Okay. course, one of the, I think, highlights of the poem is this line. Okay, where I fit into life. मतलब बहुत ही नॉन चैलेंज उसने एक फिलोसफी सी मार दिया. मतलब दिस इज व्हाट स्टक आउट टू मी व्हेन आई फर्स्ट रेड इट, कि बूढ़े लोग जनरली ऐसे करते हैं ना कि वो बोर रहते हैं अपनी लाइफ में कि क्या ही करें. एंड समटाइम्स जब उनको नीडेड फील होता है या उनको ये फील होता है कि हाँ वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, तो उनको बढ़िया लगता है. तो वो उसने बहुत ही नॉन चैलेंटली वो फिलोसफी सी मार दी. बट नाउ दैट आई रीड इट अगेन आई ऑल्सो रियलाइज कि वो अपनी फिलॉसफी से हट भी गया. मतलब ही इज नॉट टू अटैच टू हिज फिलोसफिकलनेस. उसके लिए वो वाइड लेगेड जीन्स और वो ट्रायल ही सबसे इम्पोर्टेंट है. तो उसने बोला कि जब तक मैं वेट कर रहा था तब तक मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या हो रहा था. मैं वेट कर रहा था और फिर मैंने फिलोसफी मार दी और फिर देन माई गैल इमर्स्ड. अब मेरी बंदी आ गई है, अब फिलोसफी हो गई खत्म, है ना. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो रही है लाइफ की. ऐसा. Actually, same. I also observed कि he's like, I have priorities. राइट राइट. कि हाँ ये सब लोग important हैं, but हाँ कि I also noticed the jerk with which he turns कि अब मेरी गल आ गई है. I am now मतलब now this is important, and without him saying it, you feel that कि I'm so happy that you also felt it, because that is the exact thing I felt. कि अब girl आ गई, now she is the important part and now she'll continue. हाँ यस यस, वही वो एक जर्क सा फील होता है कि मैं बैठ के बाहर देख रहा था लोगों को और फिर क्या अच्छा एंड वो आ गई है. और ऑफ कोर्स वो इमेज तो बहुत अच्छी बनाता ही है. फॉर एनी पोएम टू वर्क द इमेजेस हैव टू बी गुड. तो होल्डिंग अप द टेल ऑफ हर ब्लू चैम्बरे शर्ट, एक्सपोजिंग द वेस्ट ऑफ दोस क्रीमी वाइट पैंट्स. मतलब इमेज तो उसने पूरी बनाई है कि तुम्हें पूरी दिख रही है क्या हो रहा है. ठीक है. आई थिंक और ये भी मुझे अच्छा लगा कि ही लीव्स पैराग्राफ समटाइम्स लाइक अ क्लिफ हैंगर कि एंड यस्टरडे, और कल पता है क्या हुआ. ऐसे करके जो मेरी दोस्त मुझे वॉइस मैसेज भेजती है वो भी कभी कभी ऐसे करती है कि वो बहुत मल्टीपल वॉइस मैसेज भेजती है. तो वो एक वॉइस मैसेज के एंड में वो कुछ बोलेगी कि अच्छा और फिर वॉइस मैसेज खत्म हो जाएगा. लाइक और फिर क्या हुआ. जानना है मुझे. ठीक है. I picked her up to go to my sister's house for dinner, and she's walking down her driveway towards my truck wearing those wide-legged jeans and a black tee, and her white hair all scrunched into waves like she likes it. This is also so nice. He's telling
so easily कि they are slowly getting together, but they are not there yet. Like they are not part of each other's life, but they are becoming part of each other's life. She is going to his sister's house, so which means they are on that terms. Right. But then her driveway towards my truck, it's not our driveway, our truck. that is मैंने नोटिस नहीं किया ये तो. यस, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि वो धीरे धीरे हमें डिटेल्स दे रहा है उनकी एक्चुअल रिलेशनशिप स्टेटस का. राइट राइट राइट. और ये तो मुझे ये पहले मैंने मेंशन किया था, Paul's connection to waves, like she likes it, like बहुत ही warm और empathetic सा उसका वो है, POV है अपनी गर्लफ्रेंड की वजह की कि how she likes it. उसको पता है कि that is how she likes it. ऐसा. And one more thing that I really like is कि he only describes black tea and white hair, but we also know creamy white thing without him telling it. कि that's so nice. कि he doesn't waste इतना words. he does not waste words. हमें पता है कि और वो कितना अच्छा है कि उसने पूरी इमेज बना दी कि आई नो नाउ वर्जन ऑफ द गर्लफ्रेंड जो पास्ट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से चला रहा है, which is how a lot of stories work well, कि you build in layers. She knows she looks good and she wants me to see. So she holds her arms out like a wine bottle opener, then lowers them slowly, which draws my heart right out of my chest. But the weird part, and this, ठीक है, again cliffhanger, I'm saying कि क्या है weird part? जानना है मुझको. But I think this is one of my second favorite paragraphs in this poem, because which draws my heart right out of my chest is actually a very cliched wording, but इसमें वो cliched नहीं लगती है क्योंकि उसने उसको एक बहुत ही unnatural image के साथ पेयर करा है. See, she holds her arms out like a wine bottle opener, then lowers them slowly. तो ऐसे एक इमेज बनती है कि, और कितनी फनी सी इमेज है वो, कितनी गूफी सी फनी सी इमेज है कि एक बूढ़ी उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई और वो ऐसे करके ऐसे कर रही है क्योंकि वो दिखाना चाहती है सही लग रही हो. सच अ क्यूट इमेज. तो इसीलिए वो मेटाफर जो लाइन बोलता है, विच ड्रॉज माय हार्ट राइट आउट ऑफ माय चेस्ट, वो एक्चुअली हिट करता है मुझे कि हाँ, मतलब उसके लिए वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है. मतलब दिस पैराग्राफ ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक गॉसिप, like she knows she looks good and she wants me to see. कि आप अपने दोस्त को गॉसिप सुनाते हो ना कि वो आई और फिर उसने मुझे थोड़ी देर के लिए वो पलटी ताकि मैं देख लूं ऐसे करके. तो हाँ कि true, it is I think very same. I think हाँ कि I also like कि here you have to pause कि you till now you kind of he says words and we kind of fill in. But the same कि when I was reading wine bottle opener, I had to pause and be like कि कोई अपनी arms wine bottle opener की तरह कैसे कर सकता है कि and that is हाँ कि quite good कि and it also I think in the second reading I am realizing this कि till now he has a lot of love for the girlfriend, but now we see the girlfriend is also so comfortable कि it's a two-way thing where they are so loving. Again without telling कि उसका एक एक्शन बता रहा है कि वही के द goofiness of it और कि ऐसे करके और वो दिखा रही है ना कौन शो ऑफ करता है, but she is doing this. राइट, दैट इज वेरी ट्रू. वो ये सब वर्ड्स नहीं यूज करता, शो डोंट टेल जो सिखाते हैं ना कि वो गूफी है, वो बहुत क्यूट है. उसने कभी उसकी ऐसे तारीफें नहीं करी कि वो मेरी बंदी बहुत गूफी बहुत क्यूट है. वो बता रहा है कि ऐसे करती है देखो वो. But the weird part, and this is the part I'm reluctant to tell, is how in my life, which has been going on for a while, when one of these moments where something I wanted but thought wouldn't happen occurs, like these wide-legged jeans or meeting my girl in the first place, when happiness is like a brand new shirt, my mind calls out the name of my first friend Andy, who withdrew very early from life. How this happiness makes you think about that other happiness you had. And it's not like I see his face, it's just his name anymore, Andy, that comes to mind, like kissing the spine of a prayer book and reaching out to the passing Torah. Uncle ने एकदम emotional gut punch पे philosophy
I think this is the first time it feels like an old person's thoughts. Yes. Till now, it feels like any other person, but this is the feeling that I cannot even relate with a lot, right? और He's इसमें like, भी एक I've lived exposition your है, life for such a long time. इसमें भी वही एक एक्सपोजिशन है, who withdrew very early from life, तो उसमें एक दुख का एक टिंज भी आता है. और कितना यूफेमिज्म की तरह बता रहे हैं ना कि दिस इज हाउ यू विल टेल टू अदर पीपल नॉट डाइड या व्हाटएवर कि एंडी कि he has a soft corner for Andy. He is using very soft words for his death. हाँ नहीं, but I like what you were saying before कि this is the part which actually makes you feel like this is an old person जिसने जिंदगी जी है और अब वो ऐसी बातें कर रहा है कि मतलब अभी तक वो टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा था, but there is a part of him that is actually a 70-year-old and this is what the 70-year-old thinks. वैसा. और मतलब वही छोटी छोटी खुशियाँ, when one of those moments where something I wanted but thought wouldn't happen occurs, like these wide-legged jeans. This is such like इसमें इतना सब कुछ है, इस सेंटेंस में सैडनेस है, थोड़ा इमोशन है, फिलॉसफी और ह्यूमर है कि मैं चाहता था पर नहीं हो पा रही थी. ये wide-legged jeans. आगे सोचा भी नहीं था कि मैं आई वाज मेकिंग देखिए डिबेट चल रही थी, सब चल रही थी, बट अंदर वो हार चुका था. बट नहीं हो पाएगा. यस काफी बढ़िया है. इसके बारे में पढ़ेंगे जल्दी से, मैं पढ़ना चाहती हूँ. आई एम वेरी इंट्रिग्ड बाय दिस 70-year-old uncle. Arthur Russell. I was as surprised as some readers of this poem have been at the turn it took from the happy story of a minor romantic dream come true to a sad recollection of a childhood friend who didn't make it past young adulthood. But once I saw where the poem wanted to go and agreed to take it there, it needed a lot of bracing to work. The bit about taking the daughter to Madwell and watching the store clerks folding clothes gave the speaker credibility, and the bit outside the Target changing room where the speaker gets to say that he likes feeling like he's part of life was critical. And I needed a strong sub-ending for the happy part, which I found in the somewhat silly image of the wine opener. But the real delight writing this poem was finding my way from there into the ancient recurring pinprick grief that the speaker encounters when his old friend's name floats up into consciousness. And I loved the recklessness of the ending that I found. काफी सोच समझ के लिखे है तुमने. मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझे लगा लिख वो, लेकिन उसने काफी सोचा. यस एक्चुअली अच्छा हुआ कि हमने ये नोट पढ़ने से पहले नहीं पढ़ा था, बिकॉज हमारे लिए वो उसका जॉय ऑफ डिस्कवरी खत्म हो जाता. बट हाँ मतलब एवरीथिंग दैट ही इज रिटन हियर, बट आई थिंक I also like what he said about once I saw where the poem wanted to go and agreed to take it there. It's like कि उन्होंने एक raw draft से ही start करा होगा, in which he had like these things that he wanted to write about, and then लिखते लिखते आपको थोड़ा emotion आता है ना, हर अलग directions में आपको वो emotions लेके जाता है. And then he's like कि this is where the poem wanted to go, and I thought कि हाँ ठीक है, let's do it this way. उसके बाद उन्होंने बहुत सोच समझ के चीजें करी, मतलब सोच समझ के सीन्स फिट करे कि फोल्डिंग क्लोथ्स वाले सीन्स से एक थोड़ी सॉम्बरनेस आती है, इस सीन से थोड़ा सा ये आता है, एक विजडम आती है. और ये तो बहुत ही बढ़िया है कि आई नीडेड अ स्ट्रॉन्ग सब एंडिंग फॉर द हैप्पी पार्ट, कि वो जो मैं हैप्पी स्टोरी सुना रहा हूँ उसका कुछ एंड तो होना चाहिए ना, और वो एंड वाइन ओपनर वाली इमेज में वो एंड हो जाता है, तो फिर मैं उस एंडिंग के बाद उसमें जा सकता हूँ, दुख में जा सकता हूँ. दिस इज लाइक अमेजिंगली, मतलब होता है ना कि इतनी अमेजिंगली थॉट आउट चीज होती है कि यू डोंट सी द थिंकिंग एनीमोर, आपको नेचुरल लगता है. ओके हाँ कि उसने he was looking at it from wow पहली बार. I think पहली बार it's like how it was like, it's like behind the scenes of a poem which is like wow. yes. सही है यार, इनके बारे में और पढ़ना. I really like how he's not saying it's happening to me, he's like the speaker, which is like he's diverse, like it feels such a personal poem, but when he's talking about the poem he's so detached from the poem.
एक्चुअली दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि जब हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखने लगते हैं, स्पेशली व्हेन इट्स ग्रीफ, तो यू बिकम वेरी वो सेल्फ इंडल्जेंट आप ज्यादा हो जाते हो, क्योंकि आप उस ग्रीफ को फील ज्यादा ही करने लगते हो, और फिर वो पोएम उतनी इंजॉयबल भी नहीं रहती, क्योंकि आप उसमें कुछ ज्यादा ही इंडल्जेंट हो गए होते हो. तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू बी डिटैच्ड अ लिटिल बिट टू राइट अ गुड पोएम. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. मतलब हो सकता है मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट ऐसे इमोशन के बहने में लिखा हो, एंड देन लेटर ड्राफ्ट्स उन्होंने डिटैच्ड होकर लिखा बेसिकली. एक्चुअली हाँ, इट्स पॉसिबल कि द क्रक्स ऑफ दिस की हैप्पी स्टोरी से सैड रिकलेक्शन कुड हैव बीन तभी उन्होंने बोला ना, once I saw where the poem wanted to go, it feels like कि वो फ्लो में जा रहा था कहीं, और तो उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो इधर ही जाने देते हैं इसको. कि रोमांटिक ड्रीम कम ट्रू से सैडनेस फील हो रही है और देखते हैं कि हाउ टू मेक इट वर्क. राइट राइट राइट. दिस इज एक्चुअली अ मतलब वेरी नाइस वे ऑफ, मतलब एक ये तो मास्टर क्लास इन पोएट्री राइटिंग हो गया कि पहले अपने इमोशंस बहने दो और फिर देखो कि अच्छा ओके ये हो रहा है, दिस इज व्हाट माय इमोशंस वांट टू डू, तो देन बिकम अ स्टोरी टेलर एंड देन लुक एट इट लाइक अ स्टोरी कि अच्छा कैसे सुना सकते हैं इसको. I think this is something that I needed to hear also, because when I write poem, I don't think I can change them. I'm like, they were a point of कि they represent time, that slice of time for me. So I'm like, when I read them, I'm like, it makes me remember that. But then because he's about to publish it, he's like, ऐसे कि it has to, we have to make it work. कि उसके emotions are so different than the final output, which is so nice. I to also know. relate to what you're saying कि मैं कोई difficult emotion वाली poem लिख रही होती हूँ तो I feel very, मतलब मैं तो edit भी नहीं कर पाती उसको, या मुझे फिर से check करनी होती है, तो मुझे बहुत emotionally vulnerable feel होने लगता है. But I think मतलब वही maybe when we become more emotionally stable as people तो हम और अच्छी पोएट्री लिख पाएंगे. मतलब मुझे वो भी लगता है कि वो सफरिंग आर्टिस्ट वाली जो चीज है वो ओवर रोमांटिसाइज्ड चीज है. मतलब ऑफ कोर्स यू हैव टू सफर टू हैव इमोशंस, बट देन यू आल्सो हैव टू बी like emotionally stable to take those emotions and put them into a like proper thing for someone else to hear it out. Otherwise तुम ऐसे bramble सा कर दोगे बस कुछ, तो रोना सा रो दोगे जाके. ठीक है. Let us know guys what do you think. Rattle बहुत बढ़िया मैगजीन है इसका. मतलब मुझे रैटल वालों ने पैसे नहीं दिए हैं काश वो मुझे देते पैसे पर ये आप इसको देख सकते. But we can read more poems from them क्योंकि अगर they are collecting such good poems and it is so well formatted कि why not. I like this. मेरे को तो I am तो fan of the formatting only. हाँ हम इनके एक्चुअली पास्ट विनर्स तो देख ही सकते हैं, सारे पास्ट विनर्स की पोएम्स तो पढ़ ही सकते हैं because this is really good. So let us know guys what you thought, and I think this gives inspiration also कि you don't have to be a poet to write amazing stuff. You can just have a very like beautiful moment in your life and you can convert it into a nice poem. But I will say he is a poet. He's not established. But the way he's talking about कि these are my emotions and I converted them extremely like a craftsman कि let me now collect it together. Definitely like he has the experience. हाँ एक्चुअली इनकी और भी पोएम्स हैं. Now that I see, जब ये पोएम खोली थी तो उसके न्यूज़लेटर में लिखा था कि हम मतलब रैंडम फर्स्ट टाइम पोएट्स को भी प्राइजेस देते हैं और कोई जज होता है, कोई ये होता है, कोई वो होता है. तो मुझे लगा ये भी फर्स्ट टाइम पोएट होंगे, बट यू आर राइट, ही इज अ क्राफ्ट्समैन. बट आई थिंक स्टिल मुझे ज्यादा रिलेटेबल फील होता है जब मुझे ऐसी रैंडम पोएम इन द वाइल्ड मिलती है वर्सेस इफ आई रीड ऑर्डन और फ्रॉस्ट और वो सब कि भाई ये तो क्लासिक्स कुछ तो लिख रहे हैं, अब मुझे कुछ तो फॉर्म समझनी पड़ेगी इसके लिए, बहुत ही कुछ लिखना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड सा. दिस फील्स रिलेटेबल. You are misunderstanding my point, and of course we are at the end of podcast, we have to end it.
कि आई एम नॉट सेइंग कि दे आर एस्टैब्लिश्ड, आई एम नॉट इवन सेइंग कि yes they have written 3 poems, but कि it's not necessary for this person, this is not necessary for a person to be established, to be in the poetry circles. Like for example, there was this mathematical theorem which was proved by some 80-year-old Chinese mathematician who nobody knew, and then he took the world by storm. But that doesn't mean he did not have to be established. He did not have to run in the literary circles, publish in magazines. He did not do anything. उसने 80 साल बाद एक theorem दे दी, ये जो कोई प्रूव नहीं कर रहा मैं करूंगा तो. But he was working at his thing. कि that's why he did it. हाँ, तू ये कह रहा है कि established नहीं है, but he has worked on his craft. हाँ कि yes कि it's not an accident. कि he published in Rattle or whatever. 100% ये तो सही बात कह रहा है तू. I think हाँ, मतलब मैंने गलत एक वो भेज दी एनर्जी आई थिंक दुनिया में. ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही पोएम लिखो आपको $15,000 मिल जाएंगे. You have to work on your craft. पर आई थिंक मतलब मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे पोएट्स को पढ़ने से रादर देन एस्टैब्लिश्ड पोएट्स को पढ़ने से, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ मतलब if I also I can also be it's so motivational to work on your craft if you see these people, क्योंकि वो तो नाम बनाएंगे मर गए, they seem so untouchable कि ऐसे थोड़ी बन. Exactly. ठीक है. Okay guys, let us know what you thought, or if there is any other poem that you want us to do. We'll see you next time. Bye bye. Bye.